So this is first question. Limit है pi by 6 to pi by 3 1 plus 1 by 1 plus root 10x, and here we can see that the possibility of a and b, sum of a and b is pi by 2. तो यहाँ हम a to b प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं. ये प्रॉपर्टी हर जगह अप्लाई हो सकती है. a to b में आपको फंक्शन में x के प्लेस पे a प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस करना होता है. तो a to b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a to b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स प्रॉपर्टी होती है. तो यहाँ हमें लग रहा है पाई बाई 6 पाई बाई 3 मिलकर के पाई बाई 2 बनाएंगे, तो वो tan x को चेंज कर सकते हैं. तो हम पहले इसको i अज्यूम कर लेंगे. I is equal to pi by 6 pi by 3 1 by 1 plus root 10x dx. Let it be equation 1. By using this property, again I equal to pi by 6 to pi by 3 1 by 1 plus tan के अंदर हम x के प्लेस पे a प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस कर सकते हैं, यानी पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स डी एक्स. और ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स पाई बाई 6 30. सो पाई बाई 6 इज 30, पाई बाई 3 60. तो 30 प्लस 60 90, 90 माइनस एक्स की पॉसिबिलिटी बनती है. सो 10 90 माइनस एक्स बिकम्स कॉट एक्स. सो सेकंड टाइम आई विल बी पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 1 by 1 plus root cot x dx. And cot x can be written as 1 by tan x, and after taking LCM and shifting we get root tan x upon root tan x plus 1. This will be equation 2. After adding 1 and 2 we get 2i is equal to pi by 6 to pi by 3 1 plus root tan x upon 1 plus root tan x, which will be 1. Integration of 1 is x. Putting the limit we get pi by 6, 2i equal to pi by 6, so i is equal to pi by 12. Second question, 0 to pi by 2 sin square x upon sin x plus cos x dx. Here also we can apply the 0 to a property, because here also we can see that sin and cos can be changed mutually. So 0 to pi by 2 sin square x by sin x plus cos x. Let it be equation 1. Using the property, again we can write sin square 90 minus x upon sin 90 minus x plus cos 90 minus x dx. Sin 90 minus x is cos x, so it is cos square x upon cos x plus sin x. Second equation, after adding both we get 0 to pi by 2 sin square x plus cos square x upon sin x plus cos x, as LCM is sin x plus cos x. So and sin square x plus cos square x is 1. So finally we get 1 by sin x plus cos x. Now in this situation, this function can be reduced in single function. Whenever there is sin x plus cos x, we can use this method for making it single function. So we have to multiply and divide by 1 by root 2. 1 by root 2 को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे. 1 by root 2 यहाँ दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा. और आपको पता है 1 by root 2 sin 45 भी होता है, cos 45 भी होता है. सो इट कैन बी रिटन एज cos pi by 4 cos x. सेकंड टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ. 1 by root 2 के प्लेस पे cos pi by 4 cos x plus sin pi by 4 sin x. Here there is formula cos a cos b plus sin a sin b, which is cos of a minus b. So it can be written as cos pi by 4 minus x. And 1 by cos theta is sec theta. So finally we get 1 by root 2 integration sec pi by 4 minus x. And integration of sec x is log sec x plus tan x. So it will be log mod sec pi by 4 minus x plus tan pi by 4 minus x plus c. Now next question is again the same property, 0 to a property apply करना है. First equation as it is लिख देंगे, इसको 1 assume कर लेंगे. Using the property, in place of x we can shift a minus x, that is pi by 4 minus x, and using the formula tan of a minus b, that is tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. And after taking LCM we get this, which is equation 2. एडिंग 1 and 2 वी गेट 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 2. ये मैंने डायरेक्ट कर दिया. आप साइड में देख सकते हैं कि जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो log का जो रूल होता है वो क्या होता है, log m प्लस log n गिव्स log m इंटू n. सो ये कैंसिल हो जाएगा और log 2 बचेगा. और सिंस log 2 इज कॉन्स्टेंट, सो इट कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन. सो ओनली 1 इज देयर. इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x. सो x log 2 है. आफ्टर पुटिंग द लिमिट वी गेट पाई बाई 4 log 2 माइनस 0, दैट इज पाई बाई 4 log 2. सो i इज इक्वल टू पाई बाई 8 log 2. Next question is 0 to pi x upon 1 plus sin alpha sin x dx. This is little bit tricky question. So first you have to remove this x. Whenever there is 0 to a limit and x is in the numerator, we need to remove x from the numerator, because variable x और trigonometric function अगर साथ में होंगे तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा. तो हम यहाँ पे भी 0 to a प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. 0 to a प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए सबसे पहले गिवन फंक्शन को i अज्यूम कर लेंगे. लेट इट बी इक्वेशन 1. बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी x कैन बी रिटन एज पाई माइनस एक्स, सो वी हैव टू रिप्लेस पाई माइनस एक्स इन बोथ द प्लेस. साइन अल्फा यहाँ कॉन्स्टेंट है, इसको कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज़ रहेगा. तो पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन अल्फा साइन पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, सो इट बिकम साइन एक्स. It is second equation. Now adding 1 and 2 we get 2i is equal to 0 to pi. अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो यही एलसीएम आ जाएगा, और न्यूमरेटर में एक जगह x है एक जगह पाई माइनस एक्स है, तो x कट जाएगा तो पाई बचेगा, और पाई कांस्टेंट होता है तो पाई को हम बाहर ले लेंगे. तो हमारा जो फंक्शन है वो x हट चुका है उसमें. अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेट करने के लिए जब भी डिनोमिनेटर में साइन x आता है या कॉस x आता है तो आप उसको tan की टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इजीली इंटीग्रेट हो सकता है. लेकिन इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. हाफ एंगल का साइन x का होता है 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2. एंड इफ cos x इज देयर, उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2. आप ये दोनों फॉर्मूले लिख सकते हैं अभी.
तो जब भी ऐसा कभी हो कि डिनोमिनेटर में सिंगल कॉस एक्स है या सिंगल साइन एक्स है, उसको आप ये कर लेंगे तो इससे इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा। तो साइन अल्फा को तो हमें कुछ नहीं करना है, कॉन्स्टेंट है, उसको लिखा रहने देंगे। केवल साइन एक्स के प्लेस पे 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख देंगे और इसको एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये जो डिनोमिनेटर है ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और इधर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2 साइन अल्फा dx। अब ऊपर जो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है उसको आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया और नीचे पूरा tan की टर्म में हो गया, इसको हमने अरेंज कर लिया थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में। अब tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो अगर आप नीचे वाले tan x बाई 2 को टी पुट करेंगे तो ऊपर वाला dt में कन्वर्ट हो जाएगा। सो tan x बाई 2 इज इक्वल टू टी, tan x बाई 2 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का फिर से चेन रूल से करेंगे तो 1/2 dx इक्वल टू dt, 2 शिफ्ट हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx विल बी 2 dt। तो न्यूमरेटर में तो आ जाएगा 2 dt, पाई पहले से था और 2 से 2 कैंसिल भी हो गया क्योंकि लेफ्ट में 2 आई था, तो ऊपर पाई dt बचा, पाई को बाहर ले लिया, नीचे टी स्क्वायर प्लस 2 साइन अल्फा इंटू टी प्लस 1। साइन अल्फा को कोई चेंज नहीं करना है, कॉन्स्टेंट है। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, तो क्वाड्रेटिक को अपन वेरिएबल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट स्क्वायर में बदलते हैं। उसके लिए आपको ब्रैकेट लगाना है, टी स्क्वायर है तो ब्रैकेट में टी ले लेंगे, इधर टी का कोफिशिएंट है 2 साइन अल्फा, तो इसका आधा कर लेंगे, हाफ कर लेंगे, वो बी बन जाएगा। तो 2 साइन अल्फा का आधा होगा साइन अल्फा, वो बी बन गया, होल स्क्वायर हो गया, प्लस 1 एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस करेंगे किसको, बी के स्क्वायर को यानी साइन स्क्वायर अल्फा को। फर्दर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये वेरिएबल का स्क्वायर है और ये कांस्टेंट का स्क्वायर है, तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 1 बाई वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, मतलब 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। यहाँ पे पाई एज इट इज़ 1 बाई कॉस अल्फा, ए यहाँ पे कॉस अल्फा है, 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, मतलब टी प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। और फिर इसमें हमें लिमिट रखनी है 0 से पाई, मतलब टी की वैल्यू पहले रखेंगे क्योंकि हमने लिमिट यहाँ लिखी नहीं थी, क्योंकि अगर यहाँ लिमिट लिखते तो हमें टी वाली लिमिट लिखना पड़ता, लेकिन हमने टी के टर्म में रहने दिया और लिमिट हटा दी। तो अब जब टी की वैल्यू रख देंगे तो वापस से पुरानी लिमिट फिर से लिख देंगे 0 से पाई, और इसमें अपर लिमिट रखेंगे पहले इन प्लेस ऑफ एक्स पाई रखेंगे, तो tan पाई बाई 2 हो जाएगा। बाकी सब एज इट इज़ लिखा रहेगा, कुछ भी नहीं करना है, केवल हमें एक्स के प्लेस पे अपर लिमिट पाई बाई 2 रखना है, पाई रखना है, ये पाई बाई 2 हो गया, माइनस लोअर लिमिट रखी केवल एक्स की जगह, तो 0/2 0 हो गया, tan 0/2 tan 0 tan 0 0 होता है, तो ये 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, पाई बाई कॉस अल्फा tan इनवर्स, tan 90 इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी के साथ जितनी भी चीज़ें आ रही है सब उसके साथ ऐड होकर फर्दर इन्फिनिटी बन जाएगा अगली स्टेप में। अभी तो ये लिख देते हैं, और इधर 0 हट गया, साइन बाई कॉस होता है tan अल्फा। तो फर्स्ट वाला जो हमने देखा था इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड होता तो इन्फिनिटी बन जाता, तो वो पूरा इन्फिनिटी हो गया था, और इधर अल्फा बचेगा, tan इनवर्स tan अल्फा बिकम्स अल्फा। तो आपका ये आ जाएगा पाई बाई कॉस अल्फा पाई बाई 2, tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 की वैल्यू होती है 10 में, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी विल बी पाई बाई 2 माइनस पाई अल्फा बाई कॉस अल्फा, और इसको फर्दर एलसीएम ले लेंगे, तो जितना भी आप सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व कर लेंगे इसको, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0 टू पाई एक्स बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ भी हमें सेम चीज़ करनी है, ऊपर से एक्स को हटाना है, जब एक्स हटेगा तभी हम फर्दर कुछ कर पाएंगे इसमें। तो जब भी ऊपर एक्स और नीचे ट्रिग्नोमेट्री हो तो पहले एक्स को हटाना होता है, एक्स को हटाने के लिए हम 0 टू ए प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, जिससे वो एक्स हट जाता है, पाई आ जाता है उसकी जगह। तो फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज़, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ये डायरेक्ट ये कर दिया, और फिर हमने पाई माइनस एक्स रख दिया एक्स की जगह, 0 टू ए प्रॉपर्टी लगाई, एक्स की जगह ए माइनस एक्स रख दिया। तो यहाँ तो मैं लिख रहा हूँ, इधर मैंने हटा दिया क्योंकि कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, स्क्वायर होकर कॉस स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स रखेंगे साइन एक्स होता है, तो ये साइन स्क्वायर रहेगा, केवल ऊपर लिखा है मैंने, बाकी यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सीधे लिख दिया, एक स्टेप स्किप कर दी हमने। अब जब दोनों को प्लस करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम तो यही आ जाएगा, ऊपर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा तो पाई बचेगा, पाई को हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, बिकॉज ऊपर हमें एक्स को हटाना था केवल। अब इस सिचुएशन में जब कॉस स्क्वायर भी है साइन स्क्वायर भी है, तो आपको इसको टैन स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा सभी को, बल्कि ए स्क्वायर के साथ, क्योंकि ए स्क्वायर को भी हटाना है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स से सब जगह डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर करेंगे डिवाइड तो क्या आ जाएगा, 1 बाई ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर तो इधर आ गया, और 1 बाई कॉस स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 बचा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन बाई कॉस टैन स्क्वायर। ठीक है, तो इन तीनों को हमने ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, तो आप समझ सकते हैं 1 को डिवाइड किया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स से, तो जो ए स्क्वायर डिवाइड किया था वो तो बाहर लिख गया, तो जो कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड में था ऊपर आके सेक स्क्वायर एक्स हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप और कर लेंगे, इसमें बी बाई ए टेन एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे इसको, और इसको टी पुट करेंगे, बी बाई ए टेन एक्स को टी पुट करेंगे, जिससे टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर में एडजस्ट हो जाएगा। तो b बाई ए टेन एक्स को हमें टी पुट करना है, b अपॉन ए टेन एक्स को अगर t लेते हैं तो टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, b बाई ए एज इट इज डी एक्स इक्वल टू डी टी, और b बाई ए उधर चला गया, a बाई बी डी टी हो गया, तो ऊपर आ जाएगा a बाई बी डी टी सेक स्क्वायर एक्स की जगह, और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, a बाई बी को हमने बाहर ले लिया, पाई बाई ए बी 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टैन इनवर्स टी होता है, और इसके बाद टी की वैल्यू रखेंगे और लिमिट रख देंगे। लिमिट रखेंगे तो जब भी इन्फिनिटी रखते हैं तो पूरा इन्फिनिटी होने पर पाई बाई 2 हो जाता है, टैन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 होता है, टैन 0 0 होता है। ये आप एक करके लास्ट स्टेप लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 0 to पाई बाई टू एक्स साइन एक्स कॉस एक्स बाय साइन 4 प्लस कॉस 4x। इसमें भी हमें वही करना है, पहले ऊपर से x को हटाना है। x को हटाने के लिए वही करेंगे हम, a माइनस 0 to a प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो लेट इट बी इक्वेशन 1, फिर जितने भी x हैं उसकी जगह a माइनस एक्स मतलब 90 माइनस एक्स रख देंगे। उससे साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। नीचे साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस साइन। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहूँगा, आप ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली एलसीएम तो सेम ही है दोनों में, और ऊपर जब आप इसको ऐड करोगे तो जो x हट जाएगा और 90 बचेगा, तो 90 cos x sin x आएगा। ये आप खुद करके देख सकते हैं। तो ये हमारा ये सिचुएशन हो गई। तो क्या हुआ, इससे प्रॉपर्टी अप्लाई करने से जो ऊपर x आ रहा था वो x हट गया था, क्योंकि x को साथ में लेकर के आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो आप कुछ भी इंटरचेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आइडेंटिटी लगा सकते हैं, बट x अगर रहेगा साथ में तो उसको हटा नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें x को हटाना होता है। अब इसमें भी हमें वही करना है कि tan बनाने की कोशिश करनी है। तो नीचे जो sin की पावर 4x है उसमें डिवाइड में अगर cos की पावर 4x आ जाएगा तो tan 4x बन जाएगा। तो हमें सभी को cos की पावर 4x से डिवाइड करना है, केवल इसके कारण। ये देख रहे हैं हम कि tan की पावर 4x बनाने के लिए क्या सूटेबल रहेगा, cos की पावर 4, लेकिन वो सभी में डिवाइड होगा। तो ऊपर भी डिवाइड कर देंगे, सभी टर्म को cos की पावर 4x से डिवाइड करेंगे। तो नीचे ऊपर तो ये sin x और एक cos कट गया तो cos क्यूब x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ sin बाई cos tan की पावर 4x हो जाएगा। फर्दर sin बाई cos हो गया tan x, और जो नीचे cos स्क्वायर बचा वो sec स्क्वायर x बन गया, और 1 प्लस tan की पावर 4x को हमने लिख दिया tan स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें भी हमें tan स्क्वायर x को टी पुट करना है, बिकॉज ये tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर है। तो tan स्क्वायर x को अगर टी पुट करते हैं तो tan स्क्वायर x का चेन रूल से क्या होगा, पहले 2 tan x, फिर tan x का होगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। 2 को शिफ्ट कर देंगे 1/2 dt में, तो tan x sec स्क्वायर x dx की जगह आ जाएगा 2 dt, 1/2 dt, सॉरी 1/2 dt। तो 1/2 मतलब 4 पहले से ही था, 4 यहाँ पहले से था, तो 1/2 आ गया, तो π/8 हो गया dt। नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t, और t की वैल्यू रख दी tan स्क्वायर x, और फिर हमने लिमिट लगा दी इसमें। अब इसमें अपर लिमिट रखेंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट है 90, लोअर लिमिट है 0, 0 पर तो 0 ही हो जाएगा। तो अपर लिमिट रखेंगे π/8 tan इनवर्स tan स्क्वायर π/2 माइनस π/8 tan इनवर्स tan स्क्वायर 0। tan 90 होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा, और इधर tan 0 0 होता है, और tan इनवर्स भी 0 ही होता है, तो पूरा 0 हो जाएगा। और इधर tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 की वैल्यू होती है π/2 की, तो π/2 रख देंगे, पाई स्क्वायर बाय 16 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 to पाई x tan x अपॉन sec x प्लस tan x। सेम सिचुएशन है, यहाँ से भी x को हटाना है। x को हटाने के लिए 0 से a प्रॉपर्टी लगाएंगे। 0 से a प्रॉपर्टी के लिए हर जगह x के प्लेस पे a माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स लिख देंगे। अब ऊपर tan पाई माइनस एक्स, tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो माइनस आगे आ गया। sec 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा, माइनस आगे आ जाएगा। tan पाई माइनस एक्स माइनस tan x, माइनस से माइनस कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिचुएशन आएगी। अब इसमें दोनों को ऐड करेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया हमने, दोनों को ऐड करेंगे तो 2i इज इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम है sec x प्लस tan x, एलसीएम आ जाएगा। ऊपर x tan x और इधर पाई tan x माइनस x tan x, मतलब बचेगा पाई tan x, पाई बाहर ले लेंगे, tan x बाई sec x प्लस tan x। अब ये बहुत इजी हो जाता है, sec x प्लस tan x नीचे है, ऊपर tan x है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे sec x माइनस tan x। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि sec x प्लस tan x से sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई होने पर sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बन सकता है, और वो होता है 1। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 होता है, इसके लिए हमें sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर ये आएगा, और नीचे वाला पूरा 1 हो गया, ऊपर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, tan x sec x और tan स्क्वायर x अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख देंगे। sec x tan x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन sec x होता है, बट tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसके लिए हमें इसको पहले sec स्क्वायर x माइनस 1 करना पड़ेगा आइडेंटिटी लगा के। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट लगा देंगे ऊपर। इधर हम पहले लिमिट ये कर चुके हैं, तो इसमें लिमिट रखेंगे sec पाई माइनस sec 0, और इधर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का tan x, 1 का x। अब इधर आपको ये वैल्यू सारी पता होनी चाहिए, 180 की, पाई की और 2 पाई की, ये सब। तो sec पाई cos पाई की वैल्यू -1 होती है, sec पाई भी -1 होता है, -1 sec 0 cos 0 1 होता है, sec 0 भी 1 होता है, -1 -2 tan पाई माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिकॉज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, माइनस पहले से, तो प्लस हो गया, tan 0 -0, एंड ये आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वी गेट -5 प्लस पाई स्क्वायर बाई 2। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 1 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 dx। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप 3 पार्ट में करें, 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लें। फर्स्ट पार्ट में आप लेंगे 1 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 1। अब मॉड ऑफ x माइनस 1 में x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करें तो टर्निंग पॉइंट आता है 1, यानी 1 से पहले ये नेगेटिव होगा और 1 के बाद पॉजिटिव होगा, लेकिन 1 से ही शुरू हो रहा है, तो 1 से 4 एक ही लिमिट रहेगी और उसमें ये पॉजिटिव रहेगा। इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट रख देंगे, ज़्यादा कुछ इसमें समझाने की जरूरत है नहीं। दूसरा है 1 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 2। इसमें टर्निंग पॉइंट 2 है, क्योंकि x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करें तो 2 आता है, तो 2 मिडिल पॉइंट है इसमें, तो 1 से 2 में नेगेटिव और 2 से 4 में पॉजिटिव होगा। 1 से 2 में नेगेटिव है, तो नेगेटिव में बाहर माइनस नहीं लिखते हुए मैंने माइनस को अंदर ले लिया, तो x माइनस 2 को मैंने लिख दिया 2 माइनस एक्स, और प्लस 2 से 4 में ही होगा पॉजिटिव x माइनस 2 dx।
मतलब पहले 1 से 2 लिमिट, इसमें नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव को हम अवॉइड करेंगे, इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमें बार बार माइनस की लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 - x हो जाएगा और ये 2 से 4 में पॉजिटिव x - 2। नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे, बहुत केयरफुली करना है लेकिन, और इसकी लिमिट आएगी 5/2। ये सेकंड पार्ट हो गया। इसी तरह से थर्ड पार्ट 1 से 4 mod of x - 3 dx। अब इसमें भी टर्निंग पॉइंट 3 है, तो 1 से 3 और 3 से 4। 1 से 3 में नेगेटिव, 3 से 4 में पॉजिटिव, तो 1 से 3 में नेगेटिव है तो इसका x - 3 को हमने लिख दिया 3 - x, माइनस को अंदर लेकर के, और 3 से 4 में पॉजिटिव है तो x - 3 एज इट इज़। और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और इसमें भी लिमिट रख देंगे, 5/2 आएगा। बाद में तीनों को ऐड कर देंगे, 9/2 + 5/2 + 5/2, दैट विल बी 19/2। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 0 to 1 mod of x cos pi x dx। मॉड है मतलब हमें टर्निंग पॉइंट की जरूरत पड़ती है, तो हम यहाँ x cos pi x को 0 से इक्वेट करेंगे। दो फैक्टर हैं, x 0 cos pi x 0, x 0 cos pi x 0 है तो 0 के प्लेस पे हम cos की वैल्यू लिखेंगे, मतलब किस एंगल की वैल्यू 0 होती है, वो होती है cos pi/2, तो cos pi/2 लिख देंगे 0 के नीचे। अब कंपेयर कर लेंगे तो pi x = pi/2, तो x = pi कैंसिल 1/2, मतलब हमें 0 और 1/2 मिल रहे हैं। अब 0 और 1/2 और ये भी है 0 और 1, तो 0 दो बार आ रहा है, एक ही बार मानेंगे, अल्टीमेटली 3 पॉइंट हो रहे हैं, 1/2, 0 एंड 1। सबसे छोटी वैल्यू 0, फिर 1/2, फिर 1। 0 दो बार आ रहा था तो उसको एक को हटा दिया हमने। अब 0 से 1/2 एक इंटरवल है, 1/2 से 1 दूसरा इंटरवल है। चेक कर लेंगे, 0 से 1/2 के बीच में हम 1/4 रख के देख सकते हैं, मतलब दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया तो 1/4 आ गया। तो यहाँ मॉड हटा करके देखना है हमें, मॉड हटा देंगे और 1/4 रखेंगे, तो 1/4 cos pi/4, कुछ भी नेगेटिव की चांस नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव होगा। और जब ये पॉजिटिव 2 ही इंटरवल है तो अगला नेगेटिव होगा, ज़्यादा इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब पहला 0 से 1/2 पॉजिटिव, दूसरा 1/2 से 1 नेगेटिव, इनका इंटीग्रेशन करना है। दोनों ही फंक्शन सेम है तो आप चाहें तो इसको अलग से इंटीग्रेट कर लें पहले। तो ये सेपरेटली इंडेफिनेट मेथड से बाई पार्ट्स लगा करके इनको इंटीग्रेट कर देंगे। x cos pi x, x को हम फर्स्ट फंक्शन और cos pi x को सेकंड फंक्शन मानेंगे। x एज इट इज़, cos pi x का इंटीग्रेशन sin pi x /pi माइनस इंटीग्रेशन के अंदर x का डिफरेंशिएशन 1 sin pi x /pi एज इट इज़ dx। अब यहाँ पे पाई को बाहर ले लिया, sin pi x का माइनस cos pi x /pi हो जाएगा, माइनस प्लस cos pi x /pi स्क्वायर। ये आपका इंटीग्रल आ गया। ये आपको यहाँ भी रखना है, यहाँ भी रखना है, और लिमिट पुट करनी है दोनों में। तो ये आपको ट्राई कर सकते हैं, इनको दोनों को रख करके और लिमिट लगानी है। एंड सेम क्वेश्चन -1 to 3/2 mod of x sin pi x dx। इसमें भी x sin pi x को अलग से 0 से इक्वेट करेंगे, तो एक तो x = 0 आएगा, एक sin pi x = 0 आएगा। 0 को मैंने sin 0 लिख दिया है क्योंकि 0 sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin 0। तो कंपेयर करेंगे तो pi x और pi की वैल्यू भी होती है, दो बार करना पड़ेगा इसको। एक बार sin pi x 0 है ना, तो 0 को हम sin 0 भी लिख सकते हैं और sin pi भी लिख सकते हैं। तो एक बार sin 0 लिख करके कंपेयर करेंगे तो pi x = 0, तो x = 0 आ जाएगा। और एक बार sin pi x = 0 की जगह लिखेंगे sin pi, तो pi x = pi, x = 1। तो 0 1 दो वैल्यू आ रही है और ये दो दे रखी हैं, तो 4 वैल्यू हो जाती है। सबसे छोटी -1, फिर 0, फिर 1, फिर 3/2। सो देयर आर 3 इंटरवल्स। नाउ वी हैव टू चेक इन ईच इंटरवल। तो पहले -1 से 0 में हम -1/2 रख के देखेंगे, मॉड हटा करके। मॉड नहीं लेना है, मॉड लेंगे तो पॉजिटिव आएगा हमेशा। तो -1/2 sin -pi/2, sin थीटा माइनस sin थीटा होता है, तो आगे वाले माइनस को प्लस बना देगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। फिर 0 से 1 के बीच में +1/2 रख के देखेंगे, तो 1/2 sin pi/2 कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो पॉजिटिव होना है। तो ये पूरा इंटरवल मर्ज हो जाएगा, -1 से 1 में पॉजिटिव और सेकंड में नेगेटिव। फिर ऊपर पहले जैसा ही हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन जैसा इसको सॉल्व कर लेंगे और लिमिट रख देंगे। You can see the solution, how we have to integrate it by using pi parts. Another question, -1 से 2 mod of x³ - x dx। यहाँ भी मॉड के अंदर वाली वैल्यू को 0 से इक्वेट करेंगे। x कॉमन लिया, x² - 1 के दो फैक्टर हो गए, 3 वैल्यू मिल जाएगी, 0 1 एंड -1, और दो आसपास की वैल्यू भी दी है। तो अल्टीमेटली हमारे पास एक -1 दो बार आ रहा है, तो उनको एक बार लेने पर 4 वैल्यू हो रही है। नंबर लाइन के हिसाब से -1 0 1 एंड 2। -1 से 0 के लिए हम -1/2 रख के देखेंगे, मॉड हटा करके, तो -1/8 + 1/2 होगा, पॉजिटिव आएगा। 0 से 1 के लिए 1/2 रख के देखेंगे, नेगेटिव आएगा। और 1 से 2 के बीच में 1 + 2 होता है 3/2, 3/2 रख के देखेंगे तो वो भी पॉजिटिव मिलेगा। आप करके देख सकते हैं रफ में। इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहले इंटरवल में पॉजिटिव लेना है, -1 से 0 में x³ - x को। दूसरे इंटरवल में 0 से 1 में इसको नेगेटिव लेना है, तो नेगेटिव के लिए मैंने सीक्वेंस बदल दी, इसकी x - x³ ले लिया। तीसरे इंटरवल में 1 से 2 में पॉजिटिव। अब इनका इंटीग्रेशन करेंगे, x³ का x4/4 - x²/2 लिमिट -1 से 0। दूसरे में x²/2 - x4/4 लिमिट 0 to 1, x4/4 - x²/2 लिमिट 1 से 2। ये आप लिमिट पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अनदर क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, वो थोड़ा अलग है। -1 से 1 x² + 5 dx। यहाँ पे -a से +a प्रॉपर्टी यूज़ होती है, लेकिन इसमें नहीं होगी। इसमें आपको a to b प्रॉपर्टी ही यूज़ करनी, a + b - x वाली। तो i = सेम, फिर आप दूसरी बार i लिखेंगे और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, a + b - x रख देते हैं x की जगह। तो a + b मतलब -1 + 1 - x। x के प्लेस पे क्या रखना है हमें, -1 + 1 - x।
नीचे भी a प्लस बी माइनस एक्स, तो 1 से 1 कट गया, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, नीचे 5 की पावर माइनस एक्स हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन लिखनी है मैंने, इसमें आप सेकंड इक्वेशन मान लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो i प्लस आई 2i माइनस 1 से 1 एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस 5x, और यहाँ एक्स स्क्वायर 1 प्लस इस 5 माइनस एक्स को मैंने इन्वर्स में लिख दिया 1 बाई 5 की पावर x। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड में एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, फिर से एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 की पावर एक्स स्क्वायर, टेकिंग एक्स स्क्वायर कॉमन, ये कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं, एक्स क्यूब बाई 3 एंड पुट द लिमिट 0 टू पाई लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। ये सबसे लेंदी क्वेश्चन है बुक का, अगर आप इसको कर सकें तो इसकी सॉल्यूशन देख लीजिए। इसमें 2-3 बार प्रॉपर्टी चेंज होती है, तो इसमें सबसे पहले आपको आई अज्यूम करना है इसको 0 टू ए प्रॉपर्टी के लिए, फिर से आई प्रॉपर्टी लगाई, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स रखा, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दिया, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन होता है, विच विल बी 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एंड इट विल बी साइन स्क्वायर। काफ़ी स्टेप्स स्किप करनी पड़ रही है इसमें क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाता है अदरवाइज, तो कुछ आप लोग भी समझ सकते हैं। दोनों को प्लस करा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख दिया, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, ये 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स बन गया। लेट इट बी इक्वेशन 3। अब यहाँ हमने प्रॉपर्टी लगाई कौन सी, 0 से 2a प्रॉपर्टी। 0 से 2a प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें हम देखते हैं फंक्शन को 2a माइनस एक्स रख के देखते हैं एक्स की जगह कि वही फंक्शन अगर फिर से मिल जाता है तो वो इवन फंक्शन कहलाता है। तो 0 से 2a, इसको 2a मानेंगे तो 2a माइनस एक्स रखेंगे एक्स की जगह, यानी साइन एक्स की जगह पाई माइनस एक्स रखेंगे, साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स, तो सेम फंक्शन मिलेगा। ये आप साइड में कहीं करके देख सकते हैं, इस फंक्शन को एफ एक्स मान करके एक्स की जगह पाई माइनस एक्स रख दें तो लॉग साइन एक्स ही मिलेगा अगेन, यानी इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन होता है तो क्या होता है, 2 आगे आ जाता है और लिमिट आधी हो जाती है अपर लिमिट, तो 2 आगे आ गया और 0 टू पाई का आधा पाई बाई 2, ये नया फंक्शन बन गया। अब फिर से 0 से ए प्रॉपर्टी इसमें लगाना है, तो लेट इट बी फोर्थ इक्वेशन, एंड फिर से 0 से ए प्रॉपर्टी लगाई तो साइन एक्स की जगह 90 माइनस एक्स रखा तो वो कॉस एक्स बन गया, दोनों को ऐड कर दिया, 2 कॉमन आ गया, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इज लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने, 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया साइन 2x, लॉग एम बाई एन होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, ये अलग अलग दो इंटीग्रेशन में चले जाएंगे। अब सेकंड वाला तो कांस्टेंट बन गया तो log 2 को बाहर लेके 1 का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इधर हमें 2x को t पुट करना है, तो 2x को रखेंगे t, 2 dx dt, dx इक्वल टू हाफ dt, लिमिट चेंज होगी, 0 रखने पे 0 ही आएगा, x की जगह 0 रखा तो t 0 आ रहा है, और x की जगह अपर लिमिट रखी पाई बाई 2 तो 2 पाई बाई 2 पाई बन गया, तो अपर लिमिट हो जाएगी पाई, तो नए फंक्शन में ये लिमिट हो जाएगी और log sin t dt हाफ आ गया आगे। अब हम ये देख रहे हैं कि ये वाली जो वैल्यू कहीं ना कहीं पहले भी थी, देखिए कहाँ पे थी, 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये थर्ड में, इसको हमने आई लिया था, टी और एक्स से फर्क नहीं पड़ता है, 0 से पाई लॉग साइन टी डी टी और 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स सेम होता है, तो ये आई है, तो आई हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे इसकी जगह, इस पूरे की जगह हाफ पहले से था, हाफ आई माइनस इधर पाई बाई 2 लॉग 2, आई माइनस आई बाई 2 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल माइनस पाई लॉग 2।